with the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938. 1938 में इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी लखनऊ में. एंड बिस्मिल्लाह खान गॉट ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू हैव ए जॉब देयर. बिस्मिल्लाह खान को वहाँ बिग ब्रेक मिला उस रेडियो स्टेशन पर. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. और रेडियो पर उनकी शहनाई कंटिन्यूसली स्टार्ट हो गई. एंड द पीपल स्टार्ट टू लिसन हिम. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. Greet means welcome. जब 15 अगस्त 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसका वेलकम करने के लिए फर्स्ट इंडियन, ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिसने नेशन का वेलकम करने के लिए शहनाई बजाई. ही poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries with Destiny speech. बिस्मिल्लाह खान ने रेड फोर्ट पर, जहाँ की लाखों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, उन्होंने वहाँ पर राग कैफी की परफॉर्मेंस दी. स्टेज पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रेजेंट थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पर अपनी फेमस स्पीच दी, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. उन्होंने वहाँ वो दी थी. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. Abroad means foreign. So Bismillah Khan has not given only his performance in India but in different part of the world. He went to show his skill. His first trip abroad was to Afghanistan. First of all, he went to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. Here and listening his Shehnai, the King of Afghanistan, Zahir Shah, became so happy. He admired Bismillah Khan very much. And as a gift, he offered him Persian carpets and other souvenirs, different things he presented him. The King of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. So Bismillah Khan was not only a famous personality, famous musician, famous Shehnai player in abroad but also in India as well. Famous film director Vijay Bhatt, in a program he got this opportunity to listen Bismillah Khan. He named a movie Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, Dil Ka Khilona Hai Toot Gaya, turned out to be a nationwide chartbuster. ये फिल्म बहुत सुपरहिट हुई. And if you ever get this opportunity to ask your parents or your grandfather or grandmother कि माँ, have you listened this song? अगर उन्होंने क्या कभी गाना सुना है, दिल का खिलौना है टूट गया, definitely you are not like that because of your age factor. आप इसको पसंद नहीं कर पाएंगे क्यों, आप जो म्यूजिक सुनते हैं उस म्यूजिक में म्यूजिक तो होता ही नहीं. बट जो म्यूजिक को जानते हैं, दे नो
ये गाना भी सुपरहिट था और उस समय रेडियो पर सबसे ज़्यादा कास्ट होने वाला गाना था। दिल का खिलौना हाय टूट गया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan ventures in film music were limited to two: Vijay Vatt's Gunjati Senai and Vikram Srinivas Kannada venture Sannadhi Appanna। बिस्मिल्लाह खान को इस फिल्म ने बहुत ज़्यादा सक्सेस दिया। सेल्यूलॉइड वर्ड, सेल्यूलॉइड में ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, फिल्म को उस समय सेल्यूलॉइड बोला जाता था, तो वहाँ उन्हें बहुत सफलता मिली। लेकिन वेंचर प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व्स रिस्क, लेकिन बिस्मिल्लाह खान ने फिर भी फिल्मों में अपने म्यूजिक को लिमिटेड किया। उन्होंने केवल 2 फिल्मों में म्यूजिक दिया था, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास जो कि एक कन्नड़ फिल्म के डायरेक्टर थे, उनकी फिल्म थी सनाधि अपर्णा, उसमें उन्होंने केवल म्यूजिक दिया, इसके अलावा उन्होंने नहीं। क्यों? I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मैं केवल इस आर्टिफिशियल और इस ग्लैमर जो फिल्म वर्ल्ड का है उसके लिए नहीं आया हूँ, मेरा जो रियल म्यूजिक है आई वांट टू प्रेजेंट बिफोर द ऑडियंस। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट। Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान कितना फेमस थे, उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी, आप इस बात से जज कर सकते हैं कि उनके लिए अमेरिका में लिंकन, जो सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस सम्मानित लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पर उन्हें इनवाइट करा गया था और ही वाज द फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय थे जिसके लिए अमेरिका ने एज ए म्यूजिशियन इनवाइट किया था। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनीज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque Ustad Bismillah Khan। वो कितने वेल नोन थे, लोग उनसे कितना लव करते थे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि वो तेहरान जब गए थे तो तेहरान के जो किंग था उनसे इतना इम्प्रेस था उनकी म्यूजिक से कि उसने अपने यहाँ की एक ऑडिटोरियम जो बनवाया था, उस ऑडिटोरियम का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर ही कर दिया। इसे कहते हैं डिवोशन। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्ड मीन्स ऑफर्ड, गिवन। उनके लिए भारत के जो सबसे अच्छे माने जाते हैं पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, तीनों अवार्ड उनको दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, वो 2001 में उनको दिया गया। with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। सबसे बड़ा अवार्ड जब उनको मिला, उनके चेस्ट पर लगाया गया तो उनकी आंखें टिमटिमा उठी और जो हैप्पीनेस थी, जो रेयर हैप्पीनेस थी, उन्होंने कहा All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। उन्होंने कहा कि पश्चिम के देश भी संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि भारत की जो विरासत है वो संगीत है, इसलिए अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। In spite of having travelled all over the world, खान साहब as he is fondly called, लोग उन्हें खान साहब कहते थे, is exceedingly fond of Banaras and Damrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world।
पूरे संसार में वो घूमे थे, लेकिन उनके जो फेवरेट प्लेस थे वो केवल दो ही थे, एक तो बनारस और दूसरा उनका होम टाउन। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। एक उनका लर्नर था, उस लर्नर ने को ये ऑफर दिया कि खान साहब आप यहाँ यूएसए में आ जाइए, यहाँ पर एक शहनाई स्कूल बजाते हो, आप उसका प्रिंसिपल रहोगे। And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और वो student was well known to the nature and soul of Bismillah Khan. He promised Bismillah Khan that I will develop here the same temples as are in Banaras. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो खान साहब ने कहा ठीक है तुम मंदिर बना दोगे, लेकिन क्या यहाँ पर गंगा वैसे ही आकर बहेगी जैसी बनारस में बहती है? लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज वाई whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Tamil. उन्होंने कहा इसीलिए मैं चाहे कहीं भी होता हूँ, कहीं भी होता हूँ, लेकिन मैं अपने हिंदुस्तान को हमेशा याद रखता हूँ। मुंबई में होता हूँ तो बनारस के बारे में सोचता हूँ, बनारस में होता हूँ तो अपने गांव के मट्ठे को याद रखता हूँ। बस means it shows his great love, his emotions towards India. रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में रीडर्स डाइजेस्ट में एक इंटरव्यू आया था। शेखर गुप्ता ने इंटरव्यू किया था, तो ही पुट द क्वेश्चन बिफोर हिम, व्हेन पार्टीशन हैपन डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? तो शेखर गुप्ता का क्वेश्चन था कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आपने और आपकी फैमिली ने क्या पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान ने कितना प्यारा, कितना क्लासिकल आंसर दिया, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, मैं बनारस नहीं छोड़ सकता, भगवान क्षमा करे मुझे। नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं आज तक एक बार भी पाकिस्तान नहीं गया। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर। आई सेड नमस्कार to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. मैंने वहाँ जो इंडियंस थे उनको मैंने सलाम वालेकुम कहा और जो पाकिस्तानी थे उनको मैंने नमस्कार कहा। बस उस एक घंटे के लिए मैं पाकिस्तान गया था, उसके बाद मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। इट शोज द ट्रू फीलिंग ऑफ ए मुस्लिम पर्सन रियली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। भारत की जो एक रिच हेरिटेज है, विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, उसका वास्तव में सबसे अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. वो एक सच्चे मुसलमान थे, बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। मुस्लिम थे, सब चीज़ मानते थे, लेकिन फिर भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर शहनाई बजाते थे रोजाना सुबह। ही वॉज इन रियल सेंस ए ट्रू इंडियन एज वेल। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। एक बहुत लंबी बीमारी, प्रोलॉन्ग वेरी लॉन्ग, एक लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को ही वॉज एक्सपायर्ड। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। भारत सरकार ने एक दिन का उस दिन शोक दिवस रखा था और स्टेट गवर्नमेंट ने उनका जो
अंतिम संस्कार किया था वो बिल्कुल राजकीय सम्मान की तरह किया गया था. So really he was a great person in sense. So now pay attention at the clues, thinking point of the lesson. First is Emperor Aurangzeb banned the playing of pungi, but it was revived by a barber in his court with some improvisations and got the name Shehnai. The sound of Shehnai was considered auspicious and it is a part of a North Indian wedding. Earlier, Bismillah Khan was a player of Gilli Danda, but later on he earned Bharat Ratna. Everyone from Bismillah Khan's family was a professional musician. Bismillah Khan used to practice music on the bank of the river Ganga for hours, and he became perfect in the art. He had his programs in the All India Radio and played Shehnai from the Red Fort at the time of independence. Bismillah Khan travelled many countries and gave his performance there and impressed all his listeners. He received many awards and recognition from all over the world. He received the highest civilian award of India, the Bharat Ratna. So in fact, such Muslims should come forward to save the nation as well, because he is the symbol of national unity. It shows Hindu, Muslim, Sikh आई आपस में सब भाई भाई. So he is the real example of Hindustani brotherhood. I salute him from the core of my heart. Okay, dear student, learn something from his character. Be as great as he was and be a true Hindustani. Love India. Devote yourself toward the development of India.